नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। दिल्ली से दुबई जाने वाले स्पाइस जेट के तैयारे को पाकिस्तान के कराची में करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। आजम खान की अहलिया और इनके बेटे को ईडी ने किया तलब। मौजूदा इंजन ही कई टेक्निकी मसाइल का शिकार और बीजेपी के लीडरान डबल इंजन की कर रहे हैं बात। एमएलए जग्गा रेड्डी की बीजेपी पर तनकीद। प्राइवेट स्कूलों के जरिए फीस की लूटमार पर लगाए रोक। तलबा तंजीमों का हैदराबाद के बशीरबाग में एहतजाज। शहरों के नाम नहीं, देश के हालात बदलो। ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस की प्रेस मीट। फिल्मी अंदाज में चोरों ने की बैंक में चोरी। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में पेश आया वाकया। अब पेश है खबरों की तफसील। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के सिलसिले में पूछताछ के लिए समाजवादी पार्टी के कदावर लीडर व रुकन असम्बली मोहम्मद आजम खान की अहलिया और इनके बेटे रुकन असम्बली अब्दुल्ला आजम को तलब किया है। तज़ीन फातिमा को जारी हफ्ते लखनऊ में ईडी के रीजनल ऑफिस में अलहदा बुलाया गया है। एजेंसी इनका बयान रिकॉर्ड करना चाहती है। ईडी सीतापुर जेल में आजम खान से पूछताछ कर चुकी है। आजम खान 27 माह जेल में रहने के बाद हाल ही में जमानत पर रिहा हुए। शहर हैदराबाद ने बीजेपी की कौमी आमिला इजलास के बाद मुनक्किदा जलसे की कामयाबी का दावा करने पर कांग्रेस ने बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने इस जलसे में तेलंगाना के लिए कोई नया ऐलान नहीं किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आवाम को यह तवक्को थी कि वज़ीर आज़म फंड्स की इजराई, मुतनाज़िया अग्निपथ स्कीम या रोज़गार के बारे में बात करेंगे, लेकिन वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में इन उमूर का अहाता नहीं किया और अवाम की तवक्कुआत पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लीडरों के लिए तेलंगाना गेस्ट हाउस में तब्दील हो गया था और कहा जाफरानी जमात के 2 रोज़ा कौमी आमिला इजलास में तेलंगाना के अवाम के मफाद के लिए कोई करारदाद पेश नहीं की गई। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि मौजूदा इंजन ही कई टेक्निकी मसाइल का शिकार हो गया है और बीजेपी के लीडरान डबल इंजन की बात कर रहे हैं। 3 రోజులు కార్యవర్గ సమావేశాలు బీజేపీ చేసింది। ప్రధానమంత్రి గారు ఇది ఎట్లుందంటే ఇది తెలంగాణ ఒక గెస్ట్ హౌస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు బీజేపీ ప్రభుత్వానికి। బీజేపీ ప్రధానమంత్రికి హైదరాబాద్కు వచ్చిండు, నో క్వాలిటీలో బస చేసిండు, తెలంగాణ వంటలు తిన్నాడు, రుచులన్నీ చూసిండు, మంచిగా రెస్ట్ తీసుకున్నాడు, టైంపాస్ చేసిర్రు, 15 లక్షల రూపాయలు ఇస్తాడేమో అని ఆశపడ్డారు తెలంగాణ ప్రజలు। పేదవాడికి ఒక్క పైసా ప్రకటన చేయలేదు। ఏదో సంవత్సరానికి 2 కోట్లు అని అన్నాడు ప్రధానమంత్రి మోడీ గారు, ఒక్క ఉద్యోగం గురించి కూడా మాట్లాడలేడు। ఆ అగ్నిపథ్కు సంబంధించి సోనియా గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ గారు అగ్నిపథ్ రద్దు చేయాలని అన్నాడు, అది ప్రధానమంత్రి గారు మాట్లాడలేరు। మరి పాపం జైళ్ళలో ఇబ్బంది పడుతున్నారు, 200 మంది మీద కేసులు చేశారు। ఆ కేసులు ఏమన్నా మాఫీ చేస్తారా అని ప్రకటన వస్తుందని అనుకున్నాం, అది రాలేదు। పాపం మళ్ళీ బెయిల్లను ఇడిపించే ప్రయత్నం చేస్తారా అని ఏమైనా వస్తుంది ఏమంటే అది ప్రధానమంత్రి చెప్పలేదు। నేను బండి సంజయ్ కిషన్ రెడ్డి గారికి అడుగుతున్నా, రేపు ఏ ముఖం పెట్టుకొని నీవు పాదయాత్ర చేస్తావు, ఎట్లా చేస్తావు? మీరేమన్నారు? మీ కార్యవర్గ సమావేశాలలో ఎవరైనా ఒక పార్టీ, జాతీయ పార్టీ కానీ ఒక రాష్ట్ర పార్టీ కానీ, అది కాంగ్రెస్ కానీ బీజేపీ కానీ టీఆర్ఎస్, ఎవరైనా ఒక రాజకీయ సమావేశాలు ఒక పార్టీ, ఒక ప్రభుత్వం, ఒక కార్యవర్గ అపోజిషన్ పార్టీ ఉంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నదనుకోండి, మేము అపోజిషన్లో ఉన్నాం, మేము ఒక కార్యవర్గ సమావేశం పెట్టుకున్నప్పుడు ఏం తీర్మానం చేస్తాము? ప్రజలకు రైతులకు ఇది కావాలి, మహిళలకు ఇది కావాలి, యువకులకు ఉద్యోగాలు కావాలి, రైతులకు నిరుద్యోగ సమస్య యువకులకు కావాలి, లేకపోతే మన రైతులకు వాళ్ళకు వడ్డీ లేని రుణాలు కానివ్వండి, రుణమాఫీలు కానివ్వండి, లేకపోతే వాళ్ళకు సబ్సిడీ మీద పంట నష్టపరిహారం కానివ్వండి, గిట్టుబాటు ధర కానివ్వండి, మహిళా గ్రూపులకు లోన్లు, మిత్తి లేని లోన్లు, ఇట్లా
కార్యవర్గం అపోజిషన్ పార్టీ ఏం చేస్తుంది, మేమున్నాము, ఇవన్నీ తీర్మానాలు చేస్తాం, ఇవన్నీ ప్రజలకు చేస్తాము, ప్రభుత్వం చేయాలని అంటాం. మేము ప్రభుత్వం మీరు చేయకపోతే మా ప్రభుత్వం వస్తే మేము అమలు చేస్తాం. ఇది సిస్టమ్. ఇది ఈ కార్యవర్గ సమావేశాలు ఎందుకు పెట్టుకున్నారు? మీరు ముఖాలు చూసుకొని పెట్టుకురా ఒకందొకడు. ఇప్పుడు అట్లే ఉన్నది, ఏదో పెళ్లి సూపులకు పోయినట్టున్నది కథ బీజేపీ కార్యవర్గ సమావేశం. रंगारेड्डी जिला दिल्ली से दुबई जाने वाले स्पाइस जेट एयरलाइन के तैयारे को टेक्निकी खराबी की वजह से आज पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर उतरना पड़ा, जबकि तैयारे के तमाम मुसाफिरीन महफूज रहे। एयरलाइन के तर्जुमान के मुताबिक इस फ्लाइट में 150 से ज़ायद मुसाफिरीन सवार थे। रास्ते में तैयारे में टेक्निकी खराबी के बायस सिग्नल लाइट चमकने लगी, जिसके बाद तैयारे का रुख कराची की तरफ मोड़ दिया गया। तैयारा बाहिफाजत उतर गया और तमाम मुसाफिरीन को बाहिफाजत उतार कर मुसाफिर खाने में ले जाया गया। कराची एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को रिफ्रेशमेंट भी पेश की गई। बाद में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इत्तला दी कि अमले के अरकान ने देखा कि बाएं तरफ के ईंधन टैंक में गैर मामूली तौर पर ईंधन खत्म हो रहा है, जिस पर उन्होंने इमरजेंसी चेक लिस्ट के मुताबिक चेक किया, लेकिन ईंधन की सतह नीचे आती रही। इस पर पायलट ने कराची में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता किया और क्लियरेंस मिलने के बाद तैयारे का रुख कराची की तरफ मोड़ दिया गया। कराची एयरपोर्ट के तर्जुमान के मुताबिक हिंदुस्तानी तैयारे के मुसाफिर लॉन्च में है और इनकी मेहमान नवाजी की जा रही है और इंजीनियर तैयारे की जांच कर रहे हैं। इंजीनियर की मंजूरी के बाद ही तैयारे को टेक ऑफ की इजाज़त दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक 3 हफ्तों में स्पाइस जेट एयरलाइन के साथ ये 6वां वाक़या है। मरकज़ी जलसा यौम इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ज़ेर एहतिमाम अमीर मिल्लत इस्लामिया कल बरोज़ चहारशुंबा 6 जुलाई 2022 को ऐवान फ़ाजिल व आकिल हुसामिया मंजिल पंजशाह हैदराबाद में मुनक़्क़िद होगा, जिसमें मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल अलमारूफ जाफ़र पाशा अमीर मिल्लत इस्लामिया का खुसूसी खिताब होगा। इख्तिताम जलसे से क़ब्ल ज़िक्र भी कराया जाएगा। तमाम ही अहबाब से इस्तिफ़ादा की ख्वाहिश की जाती है। मुस्लिम लड़कियों की पुरसुकून माहौल में इस्लामी इक़दार और हिजाब के साथ तालीम, अखलाक संवारने और किरदार साजी के मकासद के साथ संतोष नगर कॉलोनी में न्यू दक्कन जूनियर कॉलेज का क़याम अमल में लाया गया है। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब मोहम्मद मुजीबुद्दीन ने मीडिया प्लेस ऑडिटोरियम वाक़े गन फाउंड्री हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि न्यू दक्कन जूनियर कॉलेज रियासत तेलंगाना की बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से मुसल्लिमा है। उन्होंने कहा कि न्यू दक्कन जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स तालीम निस्वान के फ़रोग़ और एक बेहतर व साज़ माहौल में तालिबात के लिए हुसूल तालीम के मकसद से कायम किया गया है और न्यू दक्कन जूनियर कॉलेज के तहत दुख्तरान मिल्लत में तालीमी तहरीक को फ़रोग़ दिया जाएगा ताकि मुस्लिम समाज की कोई भी लड़की तालीम से महरूम ना रहे। मोहम्मद बशीर अहमद करस्पॉन्डेंट व सेक्रेटरी ने बताया कि न्यू दक्कन जूनियर कॉलेज में MPC, ISET, BPC, MSET और UPSC के अलावा दीगर कोर्सेज भी दस्तियाब है। जानते हैं कि किसी भी कौम का बका और ज़वाल के जो फैक्टर्स है उसमें एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब एजुकेशन के हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से एजुकेशन 2 किस्म का है। एक तो आपका जो है जो एकेडमिक्स है वो एक है और दूसरा एजुकेशन जो है अखलाकियात का है, माशरे का एनवायरमेंटल एजुकेशन। अब जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में हम देख रहे हैं स्पेशली लेडीज़ के लिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, लेडीज़ के लिए एजुकेशन के लिए बहुत से चैलेंजेस हैं। एक तो सेफ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, दूसरा जो है उनको एकेडमिक्स के साथ साथ उनको जो है बिहेवियरल एजुकेशन। जैसा एक ओल्ड सेइंग है, अगर एक आदमी एजुकेटेड है तो एक आदमी एजुकेटेड है और अगर एक लेडी एजुकेटेड है तो एक पूरा घर एजुकेटेड है। इट्स अ फैमिली एजुकेशन। तो हम जो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं वो जो है लेडीज़ के बिहेवियरल एजुकेशन एज वेल एज एकेडमिक्स पे, इसको जो है हम ऑब्जेक्टिव बना के हम जो कॉलेज सेटअप करें वो एकदम बिल्कुल सेफ, यानी जो लेडीज़ एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें कंप्लीट स्टाफ राइट फ्रॉम टॉप टू बॉटम पूरे लेडीज़ फुली कवर्ड बाय CCTV कैमरास और जो है एकदम उसको NRI स्टैंडर्ड के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि जो है एनवायरनमेंट से भी जो है एजुकेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ता। तो जो है उसका जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, AC क्लासरूम्स है और उसका फर्नीचर है, teaching aids है। That addiction into a proper education system, so that whatever the time they are spending even in their own mobiles, they should at least learn something out of it. So इंशाल्लाह ये भी एक प्रोग्राम खास तौर पे रखा जाएगा
और हमारे यहाँ एजुकेशनल इवेंट्स इंशाल्लाह इतने सारे रहेंगे कि बाय एंड ऑफ द ईयर the student will learn not only the academics but also they will learn how to be a creative person and how to manage our skills. ये भी चीज़ हम इंशाल्लाह उनके अंदर पैदा करने की कोशिश करेंगे। जो असातिज़ा हमारे पास हैं, जो प्रिंसिपल मैडम हैं, हम इंशाल्लाह उनके ज़रिए इन स्टूडेंट तक पहुंचेंगे। और मेरी आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि आप लोग जो हैं जितना मैक्सिमम हो सके इस बात को फैलाएं इस कॉलेज के सिलसिले में। और हमारी फीस भी बहुत कंपेयर टू अदर प्रोफेशनल कॉलेजेस, इवन दो वी आर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन विद हाईली एक्सपीरियंस्ड टैलेंटेड टीचर्स, हमारी फीस स्ट्रक्चर जो है बहुत एक्सेसिबल है हर एक के लिए, यानी कि नॉर्मल से लेके एवरेज फैमिली तक भी जो है इसको अफोर्ड कर सकते हैं। इस तरीके का फीस स्ट्रक्चर बनाया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। Now I conclude by saying that हाँ, तो one more thing, we are inshallah soon going to conduct a talent search exam. Talent search irrespective of religion, caste, कोई भी हो इसमें आकर के हिस्सा ले सकते हैं। और इनमें से जो क्रीम स्टूडेंट्स होंगे इनको इंशाल्लाह we are वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने हैदराबाद का दौरा किया और 2 दिन यहाँ मुकीम थे, लेकिन अपने जलसे में तेलंगाना के अवाम के लिए कुछ ऐलान नहीं किया, बल्कि तेलंगाना के अवाम को उल्टा मायूस किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एहतमाम मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से मौलाना हकीम सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी, इनायत अली बाकरी, कॉन्फ्रेंस कन्वीनर्स मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इब्राहिम और सिराजुल्लाह खान व दीगर ने इन ख़यालात का इजहार किया। इस मौके पर खैरुद्दीन क़ादरी ने कहा कि अंग्रेज़ों ने जो भारत का नाम इंडिया रखा, इसको बदलने की वज़ीर-ए-आज़म में हिम्मत नहीं है, लेकिन शहरों के नाम बदलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने शहरों के नाम बदलने के बजाय देश के हालात बदलने का वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुतालबा किया। जी साहब। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब तेलंगाना का दौरा किए, 2 दिन यहाँ पर उनका क़याम रहा और आखिरी दिन एक जलसे को उन्होंने मुखातिब भी किया। तेलंगाना के अवाम को इस बात की उम्मीद थी कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म तेलंगाना के अवाम के लिए कुछ खुशखबरी सुनाएंगे और कुछ राहत का जो है ना वो दिलासा देंगे, लेकिन तमाम तेलंगाना के अवाम को इस बात की मायूसी हुई कि बजाय ज़ख्मों पर मरहम रखने के हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ज़ख्मों को और कुरेद दिया है। ये बात समझने की है, जबकि आप प्राइम मिनिस्टर सिर्फ जो है ना शुमाल या जुनूब के नहीं है, बल्कि आप पूरे हिंदुस्तान के आप जो है ना भारत के आप जो है ना प्राइम मिनिस्टर हैं। तो भारत की तमाम आवाम आपसे अच्छी तवक्कुआत रखती है और आपने जो जो वादा किया था उस वादों के पूरे होने का अभी तक इंतज़ार कर रही है। आपने 15 लाख का वादा किया, बर्फ़दान की नज़र हो गया। आप काले धन को लाने का आपने वादा किए, बर्फ़दान की नज़र हो गया। आप 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देने का आपने वादा किया था, अभी तक वफ़ा नहीं हुआ। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आपने नारा दिया, लेकिन आज हमारे भारत में आज जो है ना लड़कियां, हमारी बच्चियां भी गैर महफूज हैं और इसमें ज़्यादातर वही लोग हैं जो भारत माता की जय कहने वाले हैं। इन ख़वातीन की इज़्ज़त व हुर्मत को बर्बाद करने में ज़्यादातर उन्हीं का हाथ है। अब जब से बीजेपी सरकार आई है, हमारे भारत में एक नज़ा का माहौल पैदा हुआ है और तुरफा तमाशा ये है कि आज आप जो है ना शहरों के नामा बदलने में लगे हुए हैं। आपको भारत के अवाम की ज़िंदगी बदलने की फ़िक्र नहीं है, एक भूखे को रोटी खिलाने की फ़िक्र नहीं है, नंगे को कपड़ा पहनाने की फ़िक्र नहीं है। आपको फ़िक्र है तो शहरों के नाम बदलने की फ़िक्र है। हमको कोई एतराज़ नहीं है, आप हर शहर हर गली का नाम आप बदल दीजिए, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर कॉन्फ्रेंस आज पूरे भारत के अवाम को के सामने इस बात का खुलासा किया जाता है। आप घर के नाम आप यहाँ पर बदलना चाह रहे हैं। सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे मुल्क भारत का नाम जो इंडिया रखा था, आप पहले उसको बदलिए। आप बहुत खूब।
आप उसको पहले बदल के बतलाइए। अक़वाम मुत्तहिदा में इंडिया कहा जाता है और इंडिया हमारे मुल्क भारत का नाम नहीं है, हमारे मुल्क का नाम है भारत। और तमाम यहाँ पर भारत के रहने वाले भारतीय हैं, हिंदी है। हमको भारतीय और हिंदी होने पर फ़ख्र है। हम कभी जो है ना हिंदू या हिंदी अगर कोई हमको कहे तो हमको खुशी होती है, हम जो है ना इससे हमको दुख नहीं होता। लेकिन आपको जो है ना जो ये दुख हो रहा है कि आपके अवाम के नाम पर, पब्लिक के नाम पर जो नाम रखा गया है उससे आपको दुश्मनी है। और जो भीख में जो नाम दिया गया है, जो अंग्रेज़ जो ग़ुलामी के दौर में नाम दिया है, वो हटाने की आप में हिम्मत नहीं है। तो मैं हमारे मोदी साहब से पूछना चाहता हूं, आपका 56 इंच का सीना कहाँ गया मोदी साहब? आपका 56 इंच का सीना लद्दाख में कहाँ चले गया, जो चाइना घुसकर नई बस्तियों को बसा रहा है? आपका 56 इंच का सीना काला रंग लाने में क्यों नहीं लगा मोदी साहब? आप हैदराबाद में आकर आप हैदराबाद भाग्यनगर आप ज़बान से कह दिए। अरे आप भाग्यनगर रखिए, आप भागमती रखिए, हमको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हमको इस बात का दुख ये है कि आज हमारा भारत टुकड़ों में बटा हुआ है। हम चाहते हैं अखंड भारत, हम चाहते हैं पाकिस्तान जो ना दोबारा हमको मिल जाए, हम चाहते हैं कि बांग्लादेश मिल जाए, हम चाहते हैं कि भूटान और श्रीलंका में हम में आ जाए, अफ़गानिस्तान जो हमारा मुल्क का हिस्सा था वो हम में आ जाए। हमारा नारा तो अखंड भारत का है। तुम क्या अरे कहने वाले जो है ना इश्तिहार लेंगे भारत माता की, अरे हम भी जो है ना हिंदुस्तान हमारा मादर वतन है, हमको ये स्कूलों में पढ़ाया गया है। हम ये बात कहने में कोई आर महसूस नहीं करते। तलबा तंजीमों और दीगर की जानिब से शहर के बशीरबाग में वाक़ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के दफ्तर के सामने एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें मुतालबा किया गया कि प्राइवेट स्कूलों में फ़ीसों को कंट्रोल किया जाए और सरकारी स्कूलों में सहूलियात को बेहतर बनाया जाए। यूनियन के लीडरों ने कहा कि रियासती सतह पर फ़ीस के कंट्रोल के लिए एक खुसूसी रेगुलेशन काउंसिल कायम की जाए और इसे हर अजला में लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि हर साल 20 से 50% फ़ीसों में इजाफा किया जा रहा है। तलबा तंजीमों ने मुतालबा किया कि स्कूलों में यूनिफॉर्म, बेल्ट, टाई, किताबें और नोटबुक वगैरह की फ़रोख्त बंद करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। मेरा नाम शबाना बेगम, मैं अंबरपेट जून से आई हूँ। फ़ीसा बोले तो इतने फ़ीसा बढ़ गई, फ़ीसा बढ़ने से तो बच्चों को स्कूल में डालना बोले तो मुश्किल हो रही। कोरोना के टाइम पे फ़ीसा बन नहीं सक रहे, ऑलरेडी 3 साल से स्कूल बंद थे। अब स्कूल खुली तो फ़ीसा इतने फ़ीसा हो गई। छोटे बच्चों को नर्सरी में डालना बोले तो 30,000 35,000 बोले, इसलिए अब गरीब लोग छोटे बच्चों को स्कूल में नहीं डाल सक रहे। गवर्नमेंट स्कूल में डालना बोले तो गवर्नमेंट स्कूल में कुछ भी सही नहीं है, ना एक पढ़ाई सही है, ना एक बुक्का सही दे रहे, ना एक टीचर है, ना एक बैठने बेंच सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल का वो हाल है। प्राइवेट स्कूल में बोले तो पूरा कौन सी चीज़ सही नहीं। प्राइवेट में डालना बोले तो पूरा फ़ीसों से टू मच फ़ीसा हो रही है। कोरोना की वजह से पहले पब्लिक के पास काम आ नहीं तो कुछ भी नहीं है, तो उन लोग बच्चों को पढ़ेंगे कैसा? लिहाजा ये है कि गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे बोले तो बुक्का सही नहीं दे रहे, प्राइवेट स्कूल में बोले तो हज़ारों के रुपए ले रही। बच्चों को ले जाना बोले तो स्कूल को डर हो रहा, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसा, बढ़ेंगे कैसा, आगे उनकी लाइफ होंगी कैसा बच्चों की। इसलिए लिहाजा यहाँ पे धरना करने का मकसद ये है कि फ़ीसा कम करना, सरकारी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में पूरे हर एक चीज़ से रखना, एक सही बाथरूम नहीं, एक सही स्कूल में बेंच नहीं बैठने बच्चों को, कुछ भी नहीं है। इसलिए सब चीज़ सही करना। गवर्नमेंट हुकूमत तेलंगाना हुकूमत क्या बोली तो पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई अच्छी है, गवर्नमेंट पे डालो बोले। गवर्नमेंट में पढ़ाई नहीं है, टीचर ही नहीं है, तो पढ़ेंगे कहाँ से बच्चों को? लिहाजा इसलिए गवर्नमेंट स्कूल भी अच्छा करना, प्राइवेट स्कूल में भी फ़ीसा कम करना। जो भी है अब ये कोरोना की वजह से जो भी गरीब लोग पढ़ाना चाह रही उन लोगों को मदद होना बोल के, उन लोगों को स्कॉलरशिप देना बोल के धरना कैसे स्कॉलरशिप देना ज़रूरी है। ये कई को बोले तो ये ऑलरेडी इतने फ़ीसा बन नहीं सक रहे, इधर क्या पूछ रहे हैं तो लेटर दे के गवर्नमेंट DO ऑफिस को आए हम लोग, लेटर दे के हम लोग क्या पूछ रही बोले तो हमारे को गवर्नमेंट स्कूल में सब सही होना। इकरा मिशन जूनियर कॉलेज एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल
AMP के ताउन से इंटर के तलबा के लिए एक तरबियती क्लासेस शुरू करने जा रहा है जो नीट और JEE का इम्तिहान लिख रहे हैं। प्रिंसिपल इकरा मिशन जूनियर कॉलेज डॉक्टर मोहम्मद साजिद अली ने कहा कि हम उन तलबा पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं जो पढ़ाई में दिलचस्पी रखते हैं और बदकिस्मती से पढ़ाई का खर्च बर्दाश्त नहीं करते। इस सिलसिले में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसीलात बताई। मैं डॉक्टर मोहम्मद साजिद अली प्रिंसिपल इकरा मिशन जूनियर कॉलेज जहानुमा हैदराबाद आपसे मुखातिब हूँ। दरअसल मुखातिबत की वजह यह है कि हम जो है एसोसिएशन ऑफ माइनॉरिटी प्रोफेशनल्स और ग्रेविटी कॉलेज लखनऊ के ताउन से हम रियासत तेलंगाना में नीट और IIT कोचिंग हासिल करने वाले गरीब लेकिन होनहार यानी टैलेंटेड बच्चों के लिए एक स्कीम लेकर आए हैं और ये जो है इंशाल्लाह 11 जुलाई से शुरू होगी और ये हाइब्रिड मॉडल में पेश किया जाएगा। यानी बच्चे अगर चाहें तो कॉलेज में आकर प्रोजेक्टर के ज़रिए से चलाए जाने वाले क्लासेस जो इंटरैक्टिव होंगे उसमें भी शरीक हो सकते हैं और इसके अलावा अपने घरों के कंफर्ट से अगर वो दूर दराज के हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के हैं, मंडल लेवल पर हैं, कस्बात के हैं तो वो बच्चे वहाँ से भी उसको ये क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। ये 2 साल का प्रोग्राम रहेगा सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जो नीट और जो है JEE में इंटरेस्टेड हैं। अगर उनके ख्वाब हैं कि वो एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो इकरा हाजिर है खिदमत के लिए और AMP के ताउन से और फिर ग्रेविटी क्लासेस के ताउन से जो चलाए जाने वाले ये जो हाइब्रिड मॉडल का जो कोर्स है इससे मैं चाहता हूँ कि वालिदैन अपने बच्चों के लिए पहल करें और ये हमारी इस खिदमत से फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह ये 2 साल के बाद में मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे टैलेंटेड जो बच्चे हैं वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ्री सीट हासिल करेंगे। ये हमारी कोशिश रहेगी। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है क्योंकि बहुत सारे जो गरीब बच्चे हैं उनके पास इतनी फ़ीस नहीं होती है कि वो भारी भरकम कोचिंग सेंटर्स की फ़ीस पे करें या फिर दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पर फ़ीस है लेकिन उनके पास कोचिंग की फैसिलिटी नहीं है। तो ये 2 कमियों को पूरा करने के लिए ये मॉडल है, हाइब्रिड मॉडल है। तो मैं वालिदैन से जो स्टूडेंट्स से ये जो प्रोग्राम वॉच कर रहे हैं मैं उनसे ख्वाहिश करूँगा कि वो ये इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएँ। इसके क्लासेस जो है 11 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। स्क्रीन पर आपको मोबाइल नंबर्स शेयर किए जाएंगे, आप ये नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत के लिए अगर आपके कोई सवालात होंगे और तो आप हमसे ये सवालात भी कर सकते हैं और आप कुछ मशवरे वगैरह भी देना चाह रहे हैं तो इसमें काफ़ी डिटेल में इंशाल्लाह हम आपको इसको गाइड करेंगे। शुक्रिया। आप मैं जो नंबर दे रहा हूँ इससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9246554392। फ़ीस रहेगी नॉमिनल का मतलब ये रहेगा कि ये सिर्फ मान लीजिए 1000 रुपये माहाना रहेगी। ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कोई नीट की कोचिंग 1000 रुपये माहाना फ़ीस ये सिर्फ खिदमत की नज़र से है और टैलेंटेड बच्चों को। तेलंगाना के एक ज़िले में फिल्मी अंदाज में चोरी की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक ज़िले निज़ामाबाद के एक बैंक में चोरी की संगीन वारदात पेश आई। ये वाक़या हफ्ते की रात को पेश आया, ताहम इतवार की तातील की वजह से इसका ताख़ीर से इल्म हुआ। ज़िले के बुसापुर में वाक़ ग्रामीण बैंक से चोरों ने 7 लाख रुपए नकद रकम और तलाई जेवरात चुरा लिए। चोर बैंक से मुत्तसिल BSNL दफ्तर से बैंक में दाखिल हुए। उन्होंने गैस कटर की मदद से बैंक का शटर तोड़ दिया और अंदर दाखिल हुए। उन्होंने बैंक में मौजूद लॉकर्स को भी गैस कटर की मदद से नुकसान पहुंचाया और लॉकर्स में रखी हुई रकम के अलावा रहन रखे हुए जेवरात लेकर फरार हो गए। अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोरी की हुई माल की लागत 3 करोड़ तक हो सकती है। सफ़ा बैतुल माल शाख भैंसा की जानिब से गवर्नमेंट ZPSS गर्ल्स उर्दू मीडियम जमात दहुम के 60 तालिबात और गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल भैंसा के 30 तलबा में नोटबुक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मौलाना अब्दुल क़य्यूम क़ासमी और सदर सफ़ा हाफिज़ मुनीरुद्दीन ने तलबा और तालिबात को तालीम की अहमियत व इफ़ादियत से वाकिफ़ करवाते हुए मेहनत व जुस्तजू से तालीम हासिल करने की तलक़ीन की। इस मौके पर सफ़ा के ज़िम्मेदारान जिनमें अत्थरुद्दीन, शेख इरफान और गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल चेयरमैन शेख मुख्तार के अलावा मज़कूरा स्कूलों के असातिज़ा अज़ीज़ खान और विखारुद्दीन व दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद में कर्नाटक की एक प्राइवेट बस हादसे का शिकार हो गई, ताहम इस हादसे में तमाम मुसाफिरीन महफूज रहे। इस बस के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये बस मंगल की सुबह खैरताबाद के रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के दफ्तर के करीब सड़क के दरमियानी हिस्से से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि हादसे के वक्त बस में तकरीबन 40 मुसाफिरीन सवार थे।
इस हादसे के नतीजे में सड़क और इसके अतराफ बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने किरण की मदद से बस को वहां से हटाते हुए ट्रैफिक को बहाल करने का काम किया। पंजागुट्टा पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। दिल्ली से दुबई जाने वाले स्पाइस जेट के तैयारे को पाकिस्तान के कराची में करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। आजम खान की अहलिया और इनके बेटे को ईडी ने किया तलब। मौजूदा इंजन ही कई टेक्निकी मसाइल का शिकार और बीजेपी के लीडरान डबल इंजन की कर रहे हैं बात। एमएलए जग्गा रेड्डी की बीजेपी पर तनकीद। प्राइवेट स्कूलों के जरिए फीस की लूटमार पर लगाए रोक। तलबा तंजीमों का हैदराबाद के बशीरबाग में एहतजाज। शहरों के नाम नहीं, देश के हालात बदलो। ऑल इंडिया मुस्लिम लीडर्स कॉन्फ्रेंस की प्रेस मीट। फिल्मी अंदाज में चोरों ने की बैंक में चोरी। तेलंगाना के जिले निजामाबाद में पेश आया वाकया। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ta 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम। हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।